viewers. Today topic of discussion is tuberculosis. Tuberculosis में lymphadenopathy होती है, as we have discussed earlier also. Sarcoidosis, infectious mononucleosis में भी, Hodgkin's lymphoma and खूब सारे ऐसे cancers हैं जिनमें lymph nodes involved होती है, जहाँ पे infection ट्रैप हो जाता है, lymph nodes ट्रैप करती हैं, swell हो जाती है, involved हो जाती है, उसको बोलते हैं lymphadenopathy. So let's begin. Tuberculosis is an infectious disease caused by bacteria, Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. This bacteria are rod-shaped. And जो ये rod-shaped bacteria होते हैं, these are aerobic bacteria. They need oxygen. तो जो lungs है, lungs के अंदर alveoli, lungs के अंदर खूब सारे alveoli होते हैं, as we all know, जहाँ पे gaseous exchange होता है. तो gaseous exchange जहाँ पे होता है, because they need oxygen to grow, तो alveoli में जाके grow करते हैं. Then site of infection, pulmonary alveoli. lungs के अंदर जो parenchyma है and tissue है, वहाँ पे छोटे छोटे alveoli हैं, that are the site of infection. वहाँ पे जाके ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, मल्टीपल होते हैं. Then immune response, हमारी बॉडी में दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं. दैट इज, एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें एंटीबॉडीज नहीं फॉर्म्ड होती. हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हमारे इम्यून सेल्स आगे आते हैं एंड दे फाइट अगेंस्ट द पैथोजन. तो जो बैक्टीरिया है, दैट इज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इन बैक्टीरिया को हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, दे विल कम एंड दे विल स्टार्ट एनगल्फिंग इट एंड दे विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय दिस बैक्टीरियाज. नाउ ये बैक्टीरियाज जो है, इनका मोड ऑफ, जो हमारा जो इन्फेक्शन का मोड ऑफ स्प्रेड है वो क्या है? इट इज थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. लाइक अगर पब्लिक में कफ किया, स्नीज किया, तो थ्रू ड्रॉपलेट ये नॉस्ट्रिल्स के थ्रू आ जाएगा एंड लंग्स के अंदर एंट्री कर जाएगा. लंग्स में एंट्री करने के बाद में 3 स्टेप्स होते हैं. अगर हमारा इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा है, अगर इम्यूनिटी अच्छी है, देन मैक्रोफेजेस विल डिस्ट्रॉय इट एंड कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाएगा. अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, सपोज इफ पर्सन इज ओल्ड एज या प्रेगनेंसी में है, या उसको कोई और डिजीज है लाइक HIV, एड्स, तो इम्यूनिटी पुअर है, तो ऐसे कंडीशन में सप्रेस हो जाएगा, पता नहीं चलेगा. लंग्स के अंदर ये बैक्टीरिया विल कीप ऑन ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग एंड सप्रेस हो जाएगा. सिम्टम्स नहीं आएंगे, असिम्टोमेटिक, तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस. देन थर्ड इज एक्टिव इन्फेक्शन, यानी कि एक्यूट, जब टीबी हुआ एंड जैसे ही मैक्रोफेजेस आए, देन मैक्रोफेजेस ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को, तो क्या होगा? इन डिफेंस मैकेनिज्म, फीवर होगा बॉडी में, कफ होगा, डिस्पनिया होगा, तो ये हमें एक्यूट सिम्टम्स मिलेंगे. Tuberculosis is still one of the world's biggest infectious killer, causing more death than HIV, AIDS, and malaria. Tuberculosis is caused by bacteria, Mycobacterium tuberculosis. These bacteria are airborne and travel through nostrils into the lung to infect them. Then immune cells like macrophages rush to the site, absorb the bacteria, and try to break them. In many cases, like immune response is enough to destroy the bacteria, but individuals with low immunity or with medical conditions like suffering with malnutrition, HIV, diabetes, or in case like pregnancy, old age people are not able to fight the infection because immune response is not strong enough to overcome the bacteria. Then this bacteria start invading macrophages and form colonies in surrounding lung tissue. As they infect more cells and bacteria, employ cell-degrading enzymes that destroy infected tissue, and this triggers chest pain, cough up with blood, damaged tissue results in low oxygen level in lungs. Also will cause hormonal changes like low appetite, decreased iron production.
Here bacteria move to bones and causes back pains, in kidney and intestine causing abdominal pain, and on reaching brain it causes headache, impaired consciousness. Acute symptoms are dyspnea, weight loss, cough. Pathophysiology, as we have discussed earlier, मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड इट इज एयरबोर्न. तो जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दे विल एंटर इनटू द लंग टिश्यू इन पल्मोनरी एल्वोलाई, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा वहां पे जाएंगे. देन आवर इम्यून सेल्स मैक्रोफेजेस विल कम एंड विल ट्राई टू एनगल्फ इट. तो इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस. एंड जो कैप्सूल बनती है इन बैक्टीरिया के सराउंडिंग, उस कैप्सूल को बोलते हैं फेगोजोम. नाउ फेगोजोम के साथ में और भी सेल्स होते हैं लाइजोसोम्स, जो कि हाइड्रोटेटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं अलोंग विद एसिड्स भी. तो जो फेगोजोम होते हैं अलोंग विद लाइजोसोम फॉर्म ए फेगोलाइजोसोम, एंड दिस will destroy the bacteria by diffusing and dissolving the bacteria by acids and enzyme. But in case of Mycobacterium tuberculosis, fusion inhibit हो जाता है, phagosome and lysosome unite नहीं कर पाते and fusion नहीं हो पाता, तो डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाता बैक्टीरिया का, एंड बैक्टीरिया लंग्स के अंदर ही प्रोटेक्ट रह जाते हैं, एंड वहीं पे ही लंग्स के अंदर ये रहते रहते इन्फेक्शन स्प्रेड होता रहता है, रेप्लिकेशन होता रहता है. एंड आफ्टर 3 वीक्स जब वापस से हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मैक्रोफेजेस वापस से आते हैं, दे सराउंड दिस बैक्टीरिया एंड फॉर्म ग्रेनुलोमा. देन ग्रेनुलोमा जो है वहां पे नेक्रोसिस हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती एंड बैक्टीरिया स्ट्रांग होते हैं, हमारी इम्यूनिटी पुअर हो जाती है, तो गॉन फोकस बनता है. देन दिस गॉन फोकस इज कन्वर्टेड इनटू गॉन कॉम्प्लेक्स जब लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, लाइक सर्वाइकल, मिजेंट्रिक, एक्सिलरी. देन गॉन कॉम्प्लेक्स में अगर फाइब्रोसिस हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, तो रैंकिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है. अब अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो पूरा एलिमिनेशन हो जाएगा बैक्टीरिया का, एंड एलिमिनेशन नहीं हुआ तो ये बैक्टीरिया रहेंगे, रेप्लिकेशन होता रहेगा, एंड लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा पेशेंट में, जो कि क्रॉनिक हो जाएगा. एंड देन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी एंड कफ विथ ब्लड आने लगेगा पेशेंट को, तो सिम्टम्स में ब्लड भी आने लगेगा. Then in the starting of the lecture we have already discussed कि lymphadenopathy किस किस केसेस में होगी, lymph nodes involvement होगी, सार्कोइडोसिस में, ब्रुसेलोसिस में, इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस, सिफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, हॉस्टिंस डिजीज, लिम्फेटिक ल्यूकेमिया एंड ट्यूबरकुलोसिस. इन सब डिजीज में lymphadenopathy होगी, lymph nodes involvement होगी. देन डेफिनेशन में ट्यूबरकुलोसिस इज इन्फेक्शियस डिजीज प्राइमरली अफेक्टिंग लंग पैरेन्काइमा एंड बैक्टीरिया इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दैट इज एरोबिक, नीड ऑक्सीजन टू ग्रो. देन मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन लाइक कफिंग, स्नीजिंग या सलाइवा के थ्रू ये इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में ट्रेवल होगा. देन जनरल सिम्टम्स में हमेशा फीवर होगा, फीवर लो ग्रेड होगा बिटवीन 99 to 100, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, नाइट स्वेट, फैटिक, जॉइंट पेन एंड वेट लॉस. इट इज वेरी मार्क्ड सिम्टम इंपॉर्टेंट. जब भी पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है तो डायबिटीज एंड ट्यूबरकुलोसिस का डाउट होता है. बिसाइड दिस पल्मोनरी सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे कि डिस्पनिया, चेस्ट पेन जो होगा वो स्टिचिंग पेन होगा. पेन के साथ में कंजेशन फील करेगा पेशेंट, बोलेगा टाइटनेस है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है. देन स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा, कफ जो होगा ड्राई कफ होगा, एंड हो सकता है म्यूकोपुरुलेंट स्पूटम भी हो कफ के साथ. लेटर स्टेजेस में जब बढ़ जाता है टीबी क्रॉनिक में, तो हेमोप्टेसिस यानी कफ के साथ ब्लड आएगा. देन लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट होगी, एक्सिलरी, मिसेंट्रिक, मीडियास्टिनल एंड इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स की. ट्रांसेक्शन में अर्ली स्टेज में ये लिम्फ नोड्स ट्रांसलूसेंट ग्रेइश पैचेस दिखेंगे. एडवांस स्टेज में ये लिम्फ नोड्स ओपेक एंड येलोइश दिखेंगे ड्यू टू नेक्रोसिस एंड कैसिएशन. फॉर डायग्नोसिस पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे. इफ क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स और टोज इज प्रेजेंट देन इट इज पॉजिटिव साइन फॉर ट्यूबरकुलोसिस. स्वेलन एंड टेंडर लिम्फ नोड्स मिलेंगी नेक एंड सराउंडिंग एरिया में. देन पानी हो सकता है लंग्स में, दैट इज प्लूरल इफ्यूशन, एंड क्रैकल सुनाई देंगे, दैट आर अनयूजुअल ब्रेथ साउंड्स.
In investigation, biopsy of the affected tissue is recommended, bronchoscopy, chest X-ray, interferon gamma release blood test such as the QFT, gold test for TB infection, sputum examination and cultures. Tuberculin skin test भी patient को recommend करेंगे, that is also called PBD test, क्योंकि PBD इंजेक्ट किया जाता है एक एरिया में and then wait किया जाता है for response. TB skin test is the ideal and best test for the confirmation of Mycobacterium tuberculosis. It is also called Mentos test or tuberculin test. And why we need it? To determine whether the person is exposed to that bacteria, Mycobacterium tuberculosis, or the infection is due to other virus or bacteria. We don't need any sample. PBD is injected into the forearm. PBD क्या है? It is a purified protein derivative TB एंटीजन. तो जब ये TB एंटीजन को इंजेक्ट करेंगे फोराम में एंड जिस साइट पे इंजेक्शन दिया जाएगा उसी साइट पे आफ्टर 48 to 72 आवर्स इन रिस्पॉन्स टू दैट TB एंटीजन वहां पे स्वेलिंग होगी, इंडुरेशन एंड रेडनेस. दिस आर द कंफर्मेटरी साइंस कि पेशेंट में ट्यूबरकुलोसिस है, TB है. अगर वहां पे आफ्टर 72 आवर्स कोई रिस्पॉन्स नहीं होता उस एरिया में जहां पे इंजेक्शन दिया है, कोई स्वेलिंग नहीं है, रेडनेस नहीं है, देन टेस्ट इज नेगेटिव, पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस नहीं है. Then treatment, medical management. Pulmonary tuberculosis is treated primarily with anti-tuberculosis agent for 6 to 12 months. Pharmacological management में first line anti-tubercular medications like streptomycin, isoniazid, rifampicin and ethambutol. Then second line medication देते हैं. Then third line. Beside this BCG प्रिवेंटिव होता है, वैक्सीनेशन जो चाइल्डहुड में लग जाता है बच्चों को. एंड अगर मेडिकेशंस के बाद में अगर कोई साइड इफेक्ट है लाइक फीवर, नोजिया, जॉइंटिस, रैश, देन पेशेंट शुड कंसल्ट विद देयर डॉक्टर.